So, today's live, we have the old photographer. I mean, not old as in age old, old as in one who is been doing photography for a very very long time. He has studied photography. So, आप लोगों में से बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि अच्छा कोला वाले ओके ओके राइट अबाउट इट ओके कूल yes I have done this uh, video, I mean short film kind of stuff. Gula Gula caps. So yeah, you can check it out. So yes, we have Nimit Nigam today with us. He'll be joining soon. Let me invite him so that he is aware that we are going live. Okay, so Nimit has joined, and I'm gonna invite him to my live session. हेलो Hey बाबा। brother, how are you, Baba? बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। चोटी वाले बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। अरे दाढ़ी वाले बाबा के साथ चोटी वाले बाबा। द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल निमित निगम। Bold and beautiful, wow. Right. So, uh, Yes, yes. Nimit is not someone who need to get introduced. Nimit has his own identity. Is a renowned photographer. हम लोग बहुत लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम पे निमित से बहुत पहले से इंस्पायर्ड हैं. द वे ही क्लिक्स द पिक्चर्स, ही हैज डन some study in art only. That's what I know. और उसके बाद मैं और निमित हम पहली बार मिले थे हल्दी फेस्टिवल के टाइम पे, जहाँ हम लोग साथ में शूट Oh करने yes. गए थे. And then Nimit is the person who has taken me to the Bangkok trip, basically to Thailand trip, not otherwise. as a as his plus one for the Not video. not otherwise Right. mentioned. So he took me to Thailand as his plus one for the video introduction. Oh, sorry, introduction में प्रणय का वो पढ़ लिया actually comment. So video drone footage के, but unfortunately it couldn't go through the way we want to. क्योंकि there was some wrong thing happened at there. But then yes, it was so nice जो to be होता है with. अच्छे के लिए होता है. Right. So it was so nice to be with Nimit for that time. Or since then we are very good friends. Thank you, Nimit, for Thank you so having much, bhai. Thank you so much. this live, having this live with me. I'm so grateful to you. So let's start this session. I'm gonna have some questions at the end of the session. So if you have the questions, please hold your horses, because ज़्यादातर question हम last के 15-20 minutes में लेंगे. It's a session where I will be talking about the Nimit's work, Nimit's the overall experience about photography, the journey which he has done through. So we're gonna talk more about that. और उसके बाद फिर हम आज के जो क्वेश्चंस हैं उस पे भी लेंगे, बिकॉज निमित गोज ऑन लाइव क्वाइट सम टाइम. तो आप डायरेक्टली निमित से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो निमित, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अभी आप क्या कर रहे हो ये लॉकडाउन में? हाउ आर यू एक्चुअली डीलिंग दिस लॉकडाउन? यार ज्यादा कुछ तो नहीं हो पा रहा बिकॉज आई प्लान सो मेनी थिंग्स बट एज आई टोल्ड यू कि मेरे घर पे अभी भी पानी नहीं आ रहा, आज भी पानी नहीं आया. तो सब ओके. चीजें ठप पड़ी हुई हैं. आई प्लान सम यूट्यूब वीडियोस एंड देयर आर सम आइडियाज जो मेरे दिमाग में आए थे क्वारंटाइन में, व्हाट पीपल कैन शूट, हाउ पीपल कैन शूट. मैंने रिसेंटली कल शायद एक अपलोड करी है अपने उस पर स्टॉप मोशन के ऊपर. सो देयर आर सम ओके. अदर वीडियोज एज वेल जो आई प्लान बट मैं थोड़ा कैमरा शाय बंदा हूँ तो मेरे को ना थोड़ा टाइम लगता है कैमरे के सामने आने में. बाकी आई एम गोइंग थ्रू माय ओल्ड फोटोग्राफ्स एंड उनको मैं थोड़ा एडिट करके री एडिट करके आई एम पोस्टिंग एवरी डे. Right, right. Okay, another thing, just before we continue forward, क्योंकि stop motion की बात आई थी, many congratulations for your 100K mark on थैंक यू सो Instagram. मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो It's मच. numbers are nothing much the like, but since sincerely कुछ digits ऐसे होते हैं जो definitely make some impact. चाहे वो मेरा cricket की नेटवर्क स्लो century है या हो, आपका चाहे नेटवर्क स्लो है? it's okay, वो चलता रहेगा, बीच बीच में आता रहेगा. Okay, So नहीं वरना मैं फिर 4G में हूँ.
नहीं नहीं सही है. So again, congratulations for that mark, and we will be seeing lot more numbers to be coming ahead. 100K just the starting. So Nimit, you have been in this photography for quite a long time. What I know is like 8 9 years, more than that. तो Yeah. कैसे कब शुरू किया, कब फोटोग्राफी को समझा कि हाँ आई गोना बी पार्ट ऑफ आई 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 वांट टू बी अ फोटोग्राफर, मैं इसको ही आगे परस्यू करना चाहता हूँ, एंड द स्टडीज यू मेड अबाउट इट. एक्चुअली बहुत टाइम लगा था इस चीज को समझने में ना. लाइक आई स्टार्टेड फोटोग्राफी इन 2009 नवंबर, व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन. सो उससे पहले मेरे घर पे कोई भी कैमरा नहीं था. तो मेरी हमारा एक एजुकेशनल टूर जा रहा था केरला. तो मेरी मम्मी ने चाची से बोला कि ही इज गोइंग आउट, तो इसको कैमरा चाहिए. तो चाची से मांगा वो कैमरा था जो मैंने 9 दिन के लिए मांगा था, बट वो मैंने अपने पास 4 महीने रखा था कैमरा. एंड मैंने बहुत ओके. सारी फोटोग्राफ क्लिक करी. हमने वापस ओके. ही नहीं किया. मेरे को ऐसे रिमेम्बर होली के बाद मैंने उनको वापस किया था. तो उसके एंड पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग मी, लाइक माय सीनियर्स, माय टीचर्स, दे से कि आपकी फ्रेमिंग काफी अच्छी है, फोटोज काफी अच्छी है. और उस टाइम पे फोटोग्राफी इतनी कॉमन नहीं थी. 2010 की बात है, स्टार्टिंग ओके. जनवरी फरवरी, तब इतनी कॉमन नहीं होती थी. तो उन्होंने कहा कि काफी अच्छा है तुम्हारा काम, एंड दैट मोटिवेट मी. तो उसके बाद मैंने घर वालों को झूठ बोला कि मुझे कैमरा चाहिए. मैं फाइनल ईयर में आया, मैंने बोला फाइनल ईयर में कैमरा बहुत जरूरी है, फाइनल ईयर में जरूरी है वरना फेल कर देंगे. तो घर वालों ने बड़ी मुश्किल से 2 3 महीने बाद मुझे कैमरा दिला दिया. मैं कि माय ब्रदर, माय कजन, माय हाँ, मेरी ये अभी भी जानते हैं कि मैंने झूठ बोला था, बट माय मॉम एंड डैड इवन डोंट नो कि मैंने उस वक्त झूठ बोला था. तो कहाँ है उस वक्त मम्मी कैमरा पापा मिला अभी? है. अभी दूसरे कमरे में बिठा रखा है मैंने उनको. मैंने कहा यहाँ बताना. ओके. सारे ओके. सीक्रेट्स नहीं खोलने चाहिए. तो उसके बाद आई स्टार्टेड फोटोग्राफी. मैं सीरियसली विद अ डीएसएलआर आई स्टार्टेड फोटोग्राफी इन 2010. एंड उस टाइम मैंने बहुत क्लिक किया, बहुत सारी जगह क्लिक करी, बट 2 3 साल तक मुझे कुछ मिला नहीं था. लाइक कुछ भी नहीं मिलता था. लाइक विदाउट सिंगल पेनी आई वाज वर्किंग. 2011 में आई वर्कड एज अ वॉलंटियर इन दिल्ली फोटो फेस्टिवल. एंड ओके. उस टाइम सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक मैं काम करता था, और मुझे 800 रुपए मिलते थे एक दिन के. एंड आई वर्क देयर फॉर 8 डेज. पूरा मतलब 8 दिन हमने काम किया था. बट ये था कि उस जगह पे आई गॉट अ चांस टू मीट सम रियली ग्रेट फोटोग्राफर्स लाइक रघुराय सर, दिनेश खन्ना सर, विकी रॉय, चंदन गोम्स. मैं इन सबसे मैं वहीं पे मिला. आपके प्रभुदा दास गुप्ता से मैं मिला था वहां पे. तो इन लोगों से मैं मिला. इन लोगों को पता चला कि देयर इज समवन लाइक मी जो फोटोग्राफी करना जिसको पसंद है. एंड वहां से मेरे को इन लोगों के साथ जो लिंक्स बने ना, वो काफी ज्यादा यूजफुल हैं, बिकॉज दीज पीपल स्टिल नो मी एंड दे हैव सीन मी ग्रोइंग. They have राइट. seen my work in 2011 and they have seen my work now. So they sometimes when I meet them, like Aditya Arya sir से जब भी मैं मिला उनके गुड़गांव वाले म्यूजियम में, so he said के आपका पहले का काम मैंने देखा और अभी का काम देखा है, आपने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया, एंड वी लव टू इनवाइट यू हियर फॉर अ सेशन, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग कि एक ऐसे बड़े एग्जैक्टली. फोटोग्राफर्स आपको बोल रहे हैं कि दे वांट टू इनवाइट मी. सो या, so that's how I started. And ऐसा नहीं है, I have seen people, they just started photography and they want to earn. बहुत टाइम लगता है यार उस मोमेंट पे, बहुत उस टाइम. टाइम पे आने में ना बहुत टाइम लगता है. कि हमें 4 5 साल हुए और अब 10 साल करने के बाद अब मैं कह सकता हूँ कि अब मेरे पास कुछ ऐसा है कि आई कैन से समवन के आई नो फोटोग्राफी. सो राइट. गिव सम टाइम टू एवरीथिंग, एवरीथिंग, नॉट जस्ट आर्ट, एनीथिंग, गिव सम टाइम. एग्जैक्टली. सो यू सेड कि आपने घर वालों को बोला कि मेरे को पास होने के लिए गियर चाहिए. सो कौन सा कोर्स कर रहे थे जिसको पास होने के लिए कैमरा चाहिए पड़ता है? नहीं नहीं, एक्चुअली था मेरे फाइन आर्ट्स किया था मैंने. तो फाइन आर्ट्स का ओके. एक एक हफ्ते की क्लासेस होती है फोटोग्राफी की, फिल्म. तो आई राइट. हैव डन अ फोटोग्राफी इन फिल्म एज वेल. मैंने फिल्म पे शूट किया है, मैंने फिल्म को डेवलप किया है, मैंने एनलार्ज किया है, उनको प्रिंट किया है, आई हैव डन एवरीथिंग. तो ओके. लेकिन हमें सिर्फ एक हफ्ते पढ़ाया जाता था. बट क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत था फोटोग्राफी में, मैंने उसको छोड़ा नहीं, आई कंटिन्यू दैट. सो या, ओके. तो इट्स अ कोर्स, बट उसमें फेल नहीं हो सकता था, वो अलग बात थी, हमें पास ही करना था. बट मैंने बोला जस्ट. राइट. सो सो सिंस दिस पढ़ाई की बात निकली है निमित, बहुत लोग, आई मीन मैं पिछले 10 दिन से ये लाइव विद आर्टिस्ट कर रहा हूँ, और ज्यादातर टाइम हमको जो आर्टिस्ट होते हैं और जो मेरे को मतलब जो हमें कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं कि
how important it is to study formal study photography, या फिर आप सिर्फ यूट्यूब्स और अपने एक्सपीरियंस के जरिए भी सीख सकते हो, बिकॉज यू हैव स्टडीड, यू हैव डन द फाइन आर्ट एंड इट्स नॉट बेसिकली द फोटोग्राफी थिंग बट डेफिनेटली इट्स आर्ट. आपने आर्ट Yeah, सीखा है, exactly. आपने आपने Mhm. फॉर्मली आर्ट की स्टडी की है. So does it make difference to study art and do it, and just to have the interest in art and learning by yourself as a hobby and then growing in that thing? Is यार it आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इट्स नॉट जस्ट फोटोग्राफी, इट्स रिलेटेड टू एनीथिंग कि अगर आप किसी चीज को प्यार करते हो ना तो आप उसके बारे में जब पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑब्वियसली उस पर डेवलप होता रहेगा. तो आपका इंटरेस्ट चाहे हो भी नहीं, लेकिन अगर आप एक फोटोग्राफी कॉलेज जाओगे तब भी आप अच्छे फोटोग्राफर नहीं बन सकते बिकॉज आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज पे. तो फर्स्ट थिंग है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर आपका इंटरेस्ट है तो गूगल, यूट्यूब, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, डजंट मैटर. थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा आपका ना पाथ थोड़ा अलग होगा. लाइक इफ यू सी द वर्क ऑफ विकी रॉय या फिर चंदन गोम्स का, तो इन लोगों ने पढ़ा है फोटोग्राफी, तो इनका काम ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट है, मेरे काम से बहुत डिफरेंट है. बट ऐसा नहीं है कि मेरा काम फोटोग्राफी में है ही नहीं. आपको अपना खुद का एक जॉनर, अपना खुद का एक स्टाइल निकालना पड़ता है जो थोड़े टाइम के बाद आपको समझ आ जाएगा. स्टार्टिंग में नहीं आएगा पर धीरे धीरे आ जाएगा. तो स्टडी कर सकते हो तो कर सकते हो, बट विदाउट स्टडी भी यू कैन बिकम अ फोटोग्राफर. इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ मच यू लव दैट thing, like how much you love photography. That is more important. right, right? So, so basically, if I want to conclude this answer, if it's up to you, if you want to take that as an education, और अगर नहीं ले पा रहे हो, अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको, आपकी फैमिली प्रेशर है या कुछ ऐसा है, then still if you can continue आपकी हॉबी के लेकर, आप अगर उसके लिए सीरियस हो और अगर आप करना चाहते हो तो स्टडी करो, फॉर्मल या नहीं करो, इट डजंट मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली यू कैन ग्रो इन योर आर्ट. Yep, obviously. Right. So Nimit, abhi since you're doing this photography for past 10 years now, maybe somewhere around 10 years, so how did you evolve by the time, और कुछ चीजें सीखने में कितना टाइम लगा, और when did you realize कि now I think I am in a good phase, कि अब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उसके लिए आपको खुद से समझने के लिए कितना टाइम लगा उसमें? आई थिंक 5-6 साल तो लगे यार. क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम को अगर मैं देखूं तो आई हैव डन दोस HDR काइंड ऑफ फोटोग्राफ्स एज वेल, एंड तब मुझे बहुत अच्छी लगती थी HDR फोटोग्राफ्स. बट नाउ व्हेन आई सी दोस फोटोग्राफ्स, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वाज डूइंग. तो थोड़ा टाइम लगता है उन चीजों को समझने में. उस चीज को समझने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको औरों का काम देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि Right. आप अपने ही वर्ल्ड में जी रहे हो. आप जब तक औरों का काम देखोगे नहीं, आपको रियलाइज नहीं होगा कि क्या चल रहा है मार्केट में और कैसे लोग कर रहे हैं. सो लर्निंग फेज तो आई डोंट थिंक कि कभी खत्म होगा. बट अभी भी आई एम स्टिल लर्निंग. देर आर सम पॉइंट जब मेरे को जो कुछ फोटोग्राफ बहुत अच्छी लगती है बट लोगों को वो अच्छी नहीं लगती है, एंड बाद में मुझे रियलाइज होता है 1 महीने बाद यार एक्चुअली में वो फोटोग्राफ अच्छी नहीं है. तो स्टिल आई कांट से कि मैं कि मेरी आई फुली डेवलप हो चुकी है और मैं कह सकता हूँ कि नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. That's why I started this my kind of thing, because it depends on the people's perspective what they want. When I was studying art, तो मेरी टीचर ने एक बात कही थी कि जरूरी नहीं कि आप जो देख रहे हो वो ही सही है. आर्ट फील्ड में जो दूसरा देख रहा है वो भी सही हो सकता है. तो एक जो बच्चा ड्रॉ करता है और जो एक पिकासो ने ड्रॉ किया है, दोनों की ड्राइंग में फर्क है, लेकिन दोनों का टेस्ट अलग है. तो मे बी बच्चे के लिए वो मास्टरपीस हो और पिकासो के लिए वो मास्टरपीस हो. सो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट ऑब्वियसली एक स्पेस छोड़ना चाहिए. नेवर थिंक कि यू बिकम अ प्रोफेशनल नाउ. अपने दिमाग में ना कभी ये चीज नहीं लानी चाहिए कि आपका काम बहुत अच्छा है, आपसे अच्छा किसी का काम हो ही नहीं सकता, अब तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो. क्योंकि जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आपका लर्निंग फेज नीचे आ जाएगा, क्योंकि लर्निंग फेज हमेशा रहना चाहिए. सो आई Right. थिंक 3 साल 4 साल पहले मैंने आई डिसाइडेड कि आई आई थॉट, मुझे लगा कि नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. बट स्टिल देयर आर सम फेजेस जब मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है. सो यस, द लर्निंग फेज इज स्टिल ऑन. Right. Uh, in that sense only, Nimit, we do understand कि सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, एक अपना अपना विजन होता है. बट इज देयर एनीथिंग विच इज एब्सोल्यूट गुड और एब्सोल्यूट बैड? मतलब ये चीज चाहे कोई भी देखेगा ये चीज अच्छी ही होगी, और ये चीज चाहे कोई भी देखेगा ये चीज गंदी ही होगी.
मतलब ये ऐसा ऐसा होता है क्या क्यों कि हमको ऐसा लगे एक जनरलाइज्ड मतलब एक यूनिवर्सल अच्छा या यूनिवर्सल गंदा कुछ आर्ट के डोमेन में ऐसा होता है क्या? हो सकता है यार, कुछ वियर्ड चीजें होती हैं जो आपको देख के यू फील आता है, एंड कुछ ऐसी होती है जिनको देख के आप कहोगे अच्छा है, बट आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, लाइक इफ यू सी द वर्क ऑफ लियोनार्डो एंड माइकल एंजेलो. So they are the realistic artists. They usually paint realistic work. But when you see ओके the work of Van Gogh, तो वैन गॉग ने सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट में करना शुरू किया. एंड व्हेन यू सी द वर्क ऑफ पिकासो, तो उसने सब कुछ क्यूब में लाना शुरू किया. सो जरूर लियोनार्डो के टाइम के फोटोग्राफर्स ने जब पिकासो का काम देखा, दे इवन सेड इट इज रिटन ऑन द हिस्ट्री बुक्स कि दे सेड के इनका काम बकवास है. सो ओके जरूरी नहीं कि उनका काम बकवास है, मे बी उनका पर्सपेक्टिव वैसा है कि उनका काम बकवास है. सो कुछ यूनिवर्सल चीजें होती हैं, लाइक अभी रिसेंटली मुझे किसी ने एक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे कोई एक प्रोफाइल का भेज, आई थिंक श्वेता ने मेरे को भेजा था, एक लड़की का आईडी भेजी थी. एंड उस लड़की की जब मैं आईडी पे गया तो उसने सिर्फ पॉटी की फोटोज डाल रखी थी. सो दैट इज समथिंग वियर्ड. तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो ईगो होती है, बट ऐसा है कि कुछ चीजें आपकी अच्छी होती है, डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव. Okay, okay. So in that only that I mean continuing that question आगे कि मैं जो पूछना चाह रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ठीक है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द आंसर. इसके अलावा मैं ये भी डिटेल यहाँ ले रहा था कि डू वी हैव हाँ, मैं एनी क्वेश्चन थोड़े मिक्स कर जाता हूँ, तो मुझे क्लियर करवा देना. हाँ हाँ नहीं नहीं, दिस वाज आल्सो लाइक वन ऑफ द आंसर, लेकिन मैं मेरा और दूसरा एस्पेक्ट उस क्वेश्चन का ये भी था कि आई वाज मोर अबाउट कि जैसे एक फोटो हमने क्लिक की मान लो इन अ फोटोग्राफी नॉर्मल, जिसमें हमें एक सनराइज दिख रहा है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट गुड पिक्चर और बैड पिक्चर ऑफ सनराइज ओनली, कि अगर सनराइज ही है तो सनराइज अच्छा भी हो सकता है, सनराइज बुरा भी हो सकता है. इन दैट फॉर्मेट आई वाज लुकिंग फॉर बट समथिंग लाइक. अच्छे की कोई लिमिट नहीं है, अच्छे की कोई लिमिट नहीं है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम हाँ ना. अगर हाँ. लेट्स सपोज एक ने सिर्फ सनराइज में सिर्फ सन की फोटो खींची है, वो कहेगा ये अच्छी है. अब दूसरा बंदा आ जाएगा, सनराइज माउंटेन के पीछे से होता हुआ दिखा देगा, तो वो कहेगा ये ज्यादा अच्छी है. फिर एक बंदा उसके ऊपर से बर्ड्स उड़ता हुआ दिखा देगा, तो वो ज्यादा बेटर है. कुछ उसके हम्म. ऊपर कुछ और ले क्लाउड्स ले आएगा, तो वो और अच्छी बन जाएगी. सो देर इज नो लिमिट ऑफ द गुड पिक्चर्स. राइट. द फोटोग्राफर, I just forget the name. I think Henry Carter Bresson ही थे. He even said there is nothing like good and bad pictures. There is only a ओके pictures. That's it. ओके ओके. So सो I follow that. Okay, there's nothing like good and bad. There's only a photographs. That's it. फोटोग्राफ. ओके. सो टेक्निकल एक्सपेक्ट कितना मैटर करता है इस सेगमेंट में अगर बात करें तो, क्योंकि ऑल पिक्चर्स, कोई भी पिक्चर अगर हम देखते हैं तो हर पिक्चर को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट होते ही हैं. विदाउट सो डू यू थिंक कि एक पिक्चर को, नॉर्मल पिक्चर को भी अगर अच्छा दिखना है तो इट हैज टू फॉलो सर्टेन टेक्निकल प्रोसीजर्स टू बी करेक्टेड. जैसे हम कंपोजिशन की बात करें, हम फ्रेमिंग की बात करें. आपने खुद ही क्वेश्चन का जवाब दे दिया. आपने बोला किसी अच्छी फोटोग्राफ को, तो डजंट मैटर. अच्छी फोटोग्राफ को ना रूल्स की जरूरत है, ना टेक्निकल्स की जरूरत है, ना किसी और चीज. आपने पहले ही बोल दिया अच्छी फोटोग्राफ. जब एक फोटोग्राफ जब वॉल पे लगी हुई है, उसको देखते ही नहीं, मैं आपके मुंह से यहाँ पर वाव ये निकल पूछना गया. चाह रहा था. द क्वेश्चन वाज कि एक फोटोग्राफ अच्छी होती कैसे है. बेसिकली मेरा इंटेंशन ये था पूछने का कि उसके सब पीछे जो सबका अलग टेक्निकल. सबका अलग हाँ पर्सपेक्टिव है. द मेन थिंग इज, द मेन चीज ऑलवेज द कंपोजिशन. आई थिंक द कंपोजिशन में हर किसी का हाँ, द पर्सपेक्टिव अलग है. यूनिवर्सल, हम ना मैं कि हाँ, यूनिवर्सल यूनिवर्सली जो आइडियाज हैं. यूनिवर्सली आई थिंक हाँ, यूनिवर्सली आई थिंक कंपोजिशन जो है वो सबसे मेन मानी जाती है. एंड सेकंड थिंग होता है आपका सब्जेक्ट. क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन आपने अच्छी तरह उसको कंपोज नहीं किया, इट वोंट लुक गुड. चाहे आपका राइट. सब्जेक्ट चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपने उसको अच्छी तरह कंपोज किया है तो इट विल लुक गुड. सो मेन इज कंपोजिशन, second is subject, and the third comes the light, like what kind of light you are using. So these are the few things which make any photograph look better. राइट राइट. सो बेसिकली मैं उसी चीज के ऊपर बात कर रहा था कि फोटोज Like तो काफी लोग ऑब्वियसली ना कोई कोई. काफी लोग टेक्निकल चीजों में, लाइक मेरे पास कई बार क्वेश्चन आता है कि सर आई डोंट नो हाउ टू यूज अ मैनुअल मोड in the camera. So it doesn't matter. You don't know, you will learn. Slowly you will learn. Start shooting on auto mode. Auto mode का मतलब ये नहीं Yes. है कि आप बिल्कुल ही amateur हो गए हो.
देयर आर मेनी फोटोग्राफर्स जिनको मैं जानता हूँ जो अपर्चर प्रायोरिटी पे शूट करते हैं, शटर प्रायोरिटी पे शूट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑटो मोड पे भी शूट करते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है, जब एक फोटोग्राफ, जब आपकी आप एग्जीबिशन में जाते हो, जब आप एग्जीबिशन में जाके फोटोग्राफ देखते हो, वहां पे नीचे ये नहीं लिखा कि आपने मैनुअल मोड यूज किया है या आपने सोनी का कैमरा यूज किया है या आपने कौन सा लेंस यूज किया है। वो सिर्फ एक फोटोग्राफ प्रिंट होके लगी हुई है वहां पे, दैट्स इट। दैट इज द मेगी, और व्यूअर को सिर्फ वो फोटोग्राफ दिख रही है, दैट इज मैटर, दैट मैटर मेगी। आप छोड़ो मत, मोमेंट मत छोड़ो, आप क्लिक कर लो। राइट, राइट। और सिंस दैट लड़की का टॉपिक निकला था, तो जस्ट ऑन अ कैंडिड साइड, लड़की का टॉपिक कहाँ लड़की निकला, का प्लीज। आई डोंट मिस थिंग्स। किसी फ्रेंड ने तुम्हें लड़की का प्रोफाइल भेजा था एंड आई रिमेम्बर दैट लाइन। ओ यस, ओ यस। सिंस लड़की का टॉपिक निकला है कि लड़की का क्या सीन है निमित भाई। आई एम मैरिड, आई एम 31 एंड यू आर 31 टू, यू आर नॉट मैरिड, आई एम सो जेलस। I don't look like 31 ना। You don't I look like have a 31. I don't look like 31, तो तब तक मेरे पास अब तक फायदा है। मैं अभी मैंने अभी Q&A का मैंने अभी डाला था, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास Q&A का है ना, सर शादी कब कर रहे हो। मैंने कहा मेरी शादी से आपको क्या लेना देना यार, जी वो जीने तो इट्स लाइफ। जेनेरिक क्वेश्चन इन इंडिया। बहुत लोग मतलब एक ये एज ही ऐसी होती है ना कि 25-28 के बाद से आपको क्वेश्चन आने ही लगते हैं कि एवरीबॉडी वांट्स टू यस आस्क। एंड सिंस वी आर ऑन दिस लाइफ, आई डू नॉट वांट टू मिस दिस इंडियन ट्रेडिशन की निमित भाई शादी कब कर यस। रहे हो। आई एम सो गुड टू डॉज दिस क्वेश्चन। मैं अपने रिलेटिव और अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा डॉज कर रहा हूँ, सो आई नो हाउ टू डॉज। ओके, तो ठीक है, निमित इज नॉट आंसरिंग, सो आई गेस ही इज अवेलेबल। और जो भी बट यस, लड़कियां बट यस, देख रही, दैट इज, गो बट अहेड, दैट गो इज द अहेड। रियलिटी। आई एम सो मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो अगर मेरी कभी गर्लफ्रेंड हुई या कभी ऐसा कुछ हुआ रिलेशनशिप में, तो यू विल नो about that on my social media, that's for sure. ये अच्छा, अब क्योंकि सोशल मीडिया की बात हुई, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दिस अप कि वो टुकुर टुकुर देखते हो वाले सॉन्ग के बाद No, I'm not going to open this, I'm not going to open this. It took me 10 वो minutes. सॉन्ग वो सॉन्ग के बाद कितने It took me, प्रपोजल आए ये बताओ। भाई जितने आए थे ना वो भी डिलीट हो गए। I absolutely love that thing। वो टिकटॉक पे शायद अभी भी है वीडियो। Oh, जितने लोगों really? ने नहीं देखा हो, निमित इज ऑन टिकटॉक, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। एंड इफ यू डोंट laugh out laughter like rolling on the floor, then you are missing something very important thing in your life। All thanks to the all thanks to the art director Gautam and Roshan. It was absolutely great। So okay, coming back on the track, so निमित अभी नाउ आपने 4-5 साल पहले फोटोग्राफी करी, सीखी, फिर उसके बाद यू गॉट इनटू दिस डोमेन, you got into travel also, like lot of travel shoots, travel videos you worked on। assignments मिलते टाइम पे what all things you think in your mind कि मेरे को अभी जो असाइनमेंट करना है अगला, तो क्या सोच के आप असाइनमेंट लेते हो, या फिर सर Assignment in what sense? कोई Assignment in भी what sense? फोटोग्राफी का असाइनमेंट आप लेते हो, जो भी, चाहे वो ट्रैवल रिलेटेड हो, चाहे वो I कोई कमर्शियल I hardly असाइनमेंट। shoot for I hardly shoot for like influencer work मुझे मिलता है, but I hardly take any commercial assignment like जैसे लोग करते हैं। अच्छा, लकीली मेरे पास वर्कशॉप्स होती हैं, तो मेरे को अब तक इतना चांस मिला नहीं, क्योंकि ट्रैवल बेस्ड कंपनीज ना, दे डोंट हायर यू नाउ बिकॉज नाउ एवरीवन इज अ ट्रैवल फोटोग्राफर। थोड़ी हार्श रियलिटी है, बट नाउ एवरीवन इज अ ट्रैवल फोटोग्राफर। सो हम जितना चार्ज करते हैं अपने एक्सपीरियंस का ना, उनको उतने प्राइस में 10 फोटोग्राफर और मिल जाते हैं, तो दे यूजुअली गो टू दोस ऑल फोटोग्राफर। तो मेरे पास अब तक नहीं आया, बट आई एम वर्किंग विद ट्रिपोटो ऑन सर्टन थिंग्स। तो मेरा सबसे पहला रूल यही होता है कि मैं उनसे ये बोलता हूँ कि आई एम गोइंग टू शूट व्हाट I want to shoot। Like you and me were in a Bangkok, so we have seen like हमारी वाट लग गई थी, because हमारा जो स्टाइल था वो हमें शूट करने को मिल ही नहीं रहा था। तो जब तक कि जो एक आर्टिस्ट का स्टाइल है वो उसको दोगे नहीं, उसको फ्रीडम नहीं दोगे, वो कैसे शूट करेगा। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया अब यही होता है कि आई एम गोइंग टू शूट व्हाट आई वांट टू शूट, एंड मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलूंगा। दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद बाकी चीजें डिस्कस होती हैं।
But Right, right. I noted down everything ke where I'm going. Like if they tell me let's go, you're going to Spiti, so I will note it down the places in Spiti. वो मैं क्या क्या शूट कर सकता हूँ, कहाँ पे शूट, तो मेरा एक नोटपैड है मेरे मोबाइल में जिसके अंदर सब कुछ लिखा रहता है, तो मैं सब कुछ लिख के रखता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप फील्ड पे जाके सोचोगे आपको ये करना है, आपको ना सब चीजें पहले से, कई बार क्या होता है कि आपके फील्ड पे जाके ना चीजें आपके दिमाग से निकल जाती हैं, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे जा रहे हो, उसके बारे में रेकी चाहे कर ना पाओ आप, बट गूगल पे रेकी कर सकते हो, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है आजकल, तो आप उसके बारे Right. में जान लो, आप टाइम्स लिख के रख लो, आप लोकेशंस लिख के रख लो, एंड दैट्स हाउ यू कैन प्लान. Right, right. So Nimit, since you said that you don't do those kind of commercial assignment, what kind of assignments or what kind of work brings you income? Like commercials के लिए फिर आप किस टाइप का काम करते हो? यूजुअली वर्कशॉप्स होती है मेरी वर्कशॉप्स, लाइक कॉलेजेस इनवाइट मी फॉर द वर्कशॉप, हो गया टॉक्स के लिए, हो गया या फिर जज करने के लिए बुलाते हैं. आई एम वर्किंग विद सोनी, तो सोनी कभी मेरे को बोल देता है कि निमित यू हैव टू डू अ वर्कशॉप ऑन दिस, सो दैट्स हाउ आई अर्न. आई सेल माय फोटोग्राफ, मेरी फोटोग्राफ सेल होती रहती है गेटी के थ्रू, एंड देयर आर सम अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, तो उसके थ्रू. बाकी इन्फ्लुएंसर इज द मेन थिंग के some people say that the number doesn't matter to to anyone on Instagram, na? But I think a number matters to me, at least, because I'm working because of those numbers. I'm a full-time photographer. I have to earn through photography, so I have to check all the aspects jiske through I can earn. So number of followers on Instagram actually giving me bread and butter. बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि लाइक्स नहीं आए तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, या फॉलोअर्स नहीं आ रहे तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है. इट इज जस्ट द नंबर्स व्हिच इज हेल्पिंग मी टू गेट इन्फ्लुएंसर वर्क, बट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट इज. Right, right, right. Numbers matters to brand in the form of commercials कि क्या commercial रहेगा. Yep. But for your creativity, number should not bother you. Yeah, it don't. Like it Right. boosts you sometimes when you get a good number of likes on your photograph, but ऐसा नहीं है कि आज मेरी फोटोग्राफ पे 10,000 लाइक है तो कल मैं निकल जाऊंगा कैमरा लेके, ऐसा नहीं होता. मुझे निकलना Right. है तो निकलना है, नहीं निकलना है नहीं निकलना, तो इट डिपेंड्स ऑन मी. बट या इट इट गिव्स यू सम सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि आपके पास लाइक आ रहे हैं. ऑब्वियसली एवरीवन लव्स टू सी दोज नंबर्स ना, इवन Right. स्टीम मेकर इज राइट नाउ ऑन इंस्टाग्राम, तो ऑब्वियसली एवरीवन लव इट. Right. So, Nimit, you do quite a round of वर्क. आपने काफी क्लिक करते हो, आप स्ट्रीट भी करते हो, आप लैंडस्केप करते हो. लैंडस्केप का तो आपका एक अलग तरीके का वर्क है. बहुत ही स्पीति को आपने बहुत डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है. आपने उसको गेम से भी रिलेट किया था, पबजी के. सो दोस थिंग्स यू डू. देन यू हैव डन दिस नाइटस्केप. आपको एस्ट्रो के लिए तो आपको बहुत माना जाता है आपके काम को एस्ट्रो फोटोग्राफी में. सो you portraits भी आप करते हो. So do you think कि you have to, like as a photographer, somebody has to figure out a section or a genre where they should be like expert होने चाहिए, या फिर वो सब कुछ कर सकते हैं like you do? ये बहुत बार पूछा जाता है ना. ऑलवेज से कि इट डिपेंड्स ऑन यू. लाइक आई सेड के इफ यू लव, लाइक डोंट डू इट बिकॉज निमित निगम इज डू इट. मे बी आपका उसमें इंटरेस्ट ना हो, आप मेरे को देख के करोगे, आप नहीं कर पाओगे. अगर आपका इंटरेस्ट है, डू इट. लाइक आई एम नॉट इनटू प्रोडक्ट फोटोग्राफी के मेरे पास कई बार असाइनमेंट आते हैं, मैं लेता ही नहीं हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट फोटोग्राफी. मुझे वो रखे हुए प्रोडक्ट शूट करना पसंद नहीं है, तो मुझे पता है मैं रिजल्ट निकाल ही नहीं पाऊंगा, तो मैं शूट लेता ही नहीं हूँ. बट अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज में, तो ट्राई. लाइक रिसेंटली आई ट्राइड दैट एनिमेशन. अब मेरा इंटरेस्ट बहुत टाइम से था एनिमेशन में, एंड आई वांट टू डू दैट, सो आई डिसाइडेड कि यार इस 100K के वाले में करता हूँ, तो आई डिड इट, एंड सम पीपल लव इट. तो ऑब्वियसली Yes. अगर आपका इंटरेस्ट है ना, तो इट विल लुक इन योर वर्क because you actually love it. You are doing it from your heart, so that is more important. I give you a very simple example जो मैं अपनी हर वर्कशॉप पे देता हूँ. जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, लाइक जब हम स्कूल में होते हैं, सो एक स्टूडेंट होता है 30% वाला और एक स्टूडेंट होता है 99% वाला. अब ऐसा नहीं है 30% वाले का के सब्जेक्ट अलग है और 99 वाले के सब्जेक्ट अलग है, वो उनके इंटरेस्ट की बात है. जो 99 वाला बंदा है, जो स्टूडेंट है, उसका हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तभी वो Right. 99 सब में कंसिस्टेंट है. जो 30 वाला है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में, तो वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं कर पा रहा. सो दैट इज द सेम केस विद फोटोग्राफी. इफ यू लव
different genres. So obviously you will become, I'm not saying I'm very good in every field, but at least I have a one good work in every genre जो मैंने try किया है. So that is enough for me. So you can do, if I can do, you can also do. It depends on you that if you love that thing or not. Right, right, right. By the way, animation was very nice. So Okay, thank you so much, brother. Thank you so much. it was a 2D animation, but it was very nice the way you Yeah, pulled it yeah, up. yeah. I think one of the Thank you best so much. 100K post मैंने देखा है लोगों के हिसाब से. Thank you so much. Right. So, so Nimit, we have approximately 15, 30 minutes we have passed now, 30 minutes or more. So last के, I gonna repeat it again जो लोग बाद में आए हैं, we gonna take your questions. बहुत सारे लोग question डाल रहे हैं comment section में. We gonna take your question in last 15 minutes जो अभी बचेंगे. So for next 15 minutes also, I gonna talk more about the work which we Nimit do and the work he want to go further. So Nimit, अब gears के बारे में कुछ बात करते हैं आगे. आप हर टाइप के गियर यूज करते हो. आप मोबाइल भी यूज करते हो, देन आप कैमरा भी यूज करते हो, आपने ड्रोन भी काफी यूज किया है और अभी आपने मैविक 2 भी लिया है. सो व्हाट I'm गियर still डू learning. यू? I'm not good like you. I'm still learning. I'm not good like you. You and Satyam. अरे ओके, सो अब मेरा भी खैर पीछे छोड़ते हैं बाद में. सो आपका ही नेक्स्ट लॉट टॉक अबाउट यू फर्स्ट कि आप अभी विच इज द बेस्ट गियर यू प्रेफर एंड और व्हाट डू यू थिंक अबाउट गियर्स बेसिकली कि हाउ डज गियर मैटर्स? थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. आई होप सोनी वाले ना देख रहे हो. बट इट डजंट मैटर. मैं कि गियर डजंट मैटर. डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली. खाना जो है दाल चावल भी है और खाना पिज्जा पास्ता भी है. दाल चावल से भी मिट सकती है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको पास्ता पिज्जा खाना है तो आपको अलग है. निमित, दो मिनट, 2 मिनट रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा स्टक हो रहा है. वी गोना एनीवन. वेट इट टू गेट स्टेबल ताकि वी डोंट मिस योर मेरा आंसर. कट रहा है, आपका कट रहा है. मेरे को तो मेरा ठीक दिख रहा है, बट आई थिंक जनता बताएगी किसका नेट गायब हो रहा है दोस्तों. अगर मेरा गड़बड़ है तो फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ. नद भाई भी है. ओके, नाउ यू आर बैक. यस, वी गॉट इट. जी. अरे मैं तो पहले से हूँ, आप नहीं थे. क्या बात करो, मेरे तो अभी भी क्वेश्चन चल रहे थे. नहीं निमित, मेरा तो अभी भी आई थिंक सब बोल रहे हैं निमित का प्रॉब्लम है. क्या, रुको, मैं फिर 4G पे आता हूँ. मुझे जस्ट गिव मी अ 1 मिनट. 4G. हाँ हाँ, समझ गए दोस्तों, समझ गए. निमित भाई का कट रहा है. अब चल रहा थैंक है. यू. अब चल रहा है. अब चल रहा है. हाँ, अभी आ रहा है. आई लोग बाग होप बोल रहे एयरटेल धोखा ना दे. आई होप एयरटेल धोखा ना दे. जी. लोग बाग बोल रहे हैं निमित भाई का कट रहा है. मुझे तो सबके क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं यार, पता नहीं. चलो, मुझे आपके पीछे राउंड राउंड दिखा रहा था. चलिए, बोले बोले. ओके, राइट. सो अभी सिंस इंटरनेट स्टक हो रहा था ना आपका, तो आपको मेरा भी नहीं दिखाएगा और मुझे मुझे तो मतलब एक्चुअली ऑडियंस को पता आई चलेगा कि किसका है. सो एनीवे, एम न्यू विद लाइफ. या. लेट्स गेट बैक टू गियर्स पे कि हम गियर्स का so I'm not talking about brands, irrespective of brands. I'm talking about the gears, the type of camera which you use, like mobile, DSLR, and then coming back to the drone thing ahead of that. So उसके बारे में It बात matter. It matters if you want some special shot, like if you want to do weddings, if you want to do astro, if you want to do wildlife, then obviously you need a costly equipment because उनके लिए आपको कॉस्टली लेंसेज चाहिए, कॉस्टली बॉडीज चाहिए अच्छी. बट अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी की बात करूं तो फोटोग्राफी स्ट्रीट, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जिसके लिए आप नॉर्मल कैमरा भी यूज करोगे ना विद अ नॉर्मल लेंस, इवन तब भी आप शुरू. आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने 2013 में व्हेन आई सोल्ड माय फर्स्ट फोटोग्राफ टू एतिहाद एयरवेज,
इन 1.2 लाख। तो वो फोटोग्राफ मैंने एक 25,000 के कैमरे से खरीदी थी और खींची थी, और जिसके साथ विद अ किट लेंस 1855 किट लेंस के साथ। तो उस बॉडी से आई सोल्ड माय फोटोग्राफ टू एतिहाद एयरवेज इन 1.2 लाख। सेम ईयर में आई वॉन अ इंटरनेशनल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट एंड आई वॉन 1 लाख रुपीज इन दैट कॉन्टेस्ट। एंड उस कॉन्टेस्ट को जज किया था स्टीव मैकरी सर और शाहिदुल आलम सर ने। एंड वो फोटोग्राफ भी मेरे किट कैमरा, मेरे किट बॉडी जो मेरा 25,000 का कैमरा था और किट लेंस जो आता उससे क्लिक हुआ था। तो तब से आई बिलीव के मेरी कॉस्टली इक्विपमेंट डजंट मैटर। आज जब से मैं एस्ट्रो में आया हूँ, इट मैटर्स बिकॉज यू नीड f2.8 lenses, f1.8 lenses to get a sharp images. बट ओके दैट्स कूल। मेरी अगर आप नॉर्मल फोटोग्राफी करना चाहते हो, अपना नॉर्मल पोर्टफोलियो से अपना नाम बनाना चाहते हो, देन यू कैन बाय एनीथिंग। आजकल तो मोबाइल इतने एडवांस हो गए हैं। मेरी पबजी इन स्पीति वाली जो आपने जो मेरी सीरीज देखी है, उसमें मोस्ट ऑफ माई शॉर्ट्स 80% शॉर्ट्स मेरे जो है मेरे क्लिक हुए हैं मोबाइल से, विंटर्स वाले जो हैं। बिकॉज जब मैं स्पीति गया था, मेरा वो ब्लॉग अब तक शायद आई थिंक किसी ने देखा नहीं होगा, बट उस जब मैं स्पीति जा रहा था तो व्हेन आई रीच टू किन्नौर, सांगला में जब मैं था होटल में, तो मेरा निकॉन का चार्जर काम नहीं कर रहा था, D800 का। ओके तो ओके एंड वहां पे कहीं पे भी शॉप नहीं थी जहां से आप कैमरे का चार्जर, वो भी फुल फ्रेम कैमरे का चार्जर आप कहीं से खरीद सको। तो मेरे पास सिर्फ एक बैटरी थी जो मुझे 1 महीना चलानी थी। तो मैं शूट ही नहीं करता था, मैं सारे शॉट मोबाइल से लेता था। एंड कुछ जो एक दो शॉट ऐसे लगते थे जो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो मैं कैमरे से लेता था। तो 80% शॉट जो मेरे पास मेरे विंटर्स के हैं वो सारे मोबाइल से हैं मेरे। तो ओके इट डजंट मैटर टू मी। like people राइट love that series, so it doesn't matter. परफेक्ट परफेक्ट सिंस इमेज सेलिंग की बात उठी है तो पिछले कई से सेशंस जो हमने किए थे उसमें भी हमने ये इमेज सेलिंग के बारे में बात करी है। सैबी ने और भी हमको इस मामले में काफी चीजें बताई थी। कैन यू शेयर योर आइडिया और योर एक्सपीरियंस आल्सो ऑन इमेज सेलिंग की हम कैसे अपनी इमेज बेच सकते हैं और व्हाट आर द सोर्सेज जहां पर हम इनको बेच सकते हैं और किस टाइप की इमेजेस बिकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नोटिस कि सबसे ज्यादा फोटोग्राफ ना आपके वॉलपेपर बिकते हैं। लाइक सबसे ज्यादा सेल क्या होगा, आपने मोबाइल वॉलपेपर्स देखे हैं, आपके पीसी आते हैं, पीसी के वॉलपेपर होते हैं, आपके टीवीज खरीदते हो आजकल, टीवी के एंड्रॉइड वॉलपेपर्स होते हैं। तो मोस्टली आपके वॉलपेपर ही बिकते हैं। और जितना ज्यादा आप ड्रीमी क्लटर नहीं करोगे अपने शॉट को ना, सिंप्लीफाइड रखोगे, उतना ज्यादा आपके बिकने के चांसेस होते हैं। तो दैट इज आई थिंक मेरी सबसे ज्यादा फोटोग्राफ जो बिकी है वो लद्दाख का एक शॉट है, विच इज अ वेरी सिंपल सॉर्टेड शॉट, जो सबसे ज्यादा बिका है मेरा अब तक का। तो और वो एलजी ने भी खरीदा था अपने वॉलपेपर के लिए, काफी अच्छी अच्छी कंपनीज ने भी खरीदा, बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल शॉट। उसमें बहुत क्लटर नहीं है, बहुत सारी चीजें घुसी नहीं है। तो आपको ना सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या बिकता है, और उसके बाद राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत है आपको कि आप किस प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, क्योंकि देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जो आपका बेच रहे हैं। आई स्टॉक है, शटर स्टॉक है, इमेज बाजार है, गेटी है। आई यूजुअली सेल माय फोटोग्राफ थ्रू गेटी इमेजेस बिकॉज गेटी मुझे अच्छा प्राइस देता है। आई स्टॉक एंड शटर स्टॉक मेरी फोटोग्राफ ना ₹2 $2 में बेच देती है, तो विच आई डोंट लाइक। यार $2 में बेचने वाली फोटोग्राफ थोड़ी होती है। तो आई स्टॉप अपलोडिंग माय फोटोग्राफ ऑन गेटी एंड शटर स्टॉक एंड आई स्टॉक। तो आई आई एम स्टिल ऑन गेटी इमेजेस, एंड गेटी इमेजेस मेरे को अच्छा देती है। बट ये है कि गेटी पे आप इनवाइट पे ही आते हो, लाइक गेटी खुद इनवाइट करता है फोटोग्राफर्स को। तो लकीली आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। तो वो है, वरना उसके अलावा 500 पिक्स है। 500 पिक्स आपको बहुत अच्छा प्राइस देता है। सबसे ज्यादा मेरी सेल होती है गेटी से एंड 500 पिक्स से। तो 500 पिक्स बहुत सेल करता है फोटोग्राफ, बहुत। तो ओके आप बना सकते हैं वहां पे अकाउंट, बहुत इजीली वहां पे बिक जाती है अगर आपका फोटोग्राफ काफी अच्छा है। तो बेटर है कि देखिए, दैट्स हाउ आई यूजुअली सेल माय फोटोग्राफ। राइट सो और ये जो एतिहाद ने पिक्चर खरीदी या एलजी ने लिया ये गेटी से ही लिया था या दे हैव डायरेक्टली गॉट इन टच नहीं विद नहीं यू? नहीं 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 नहीं। ये जो एतिहाद ने जो लिया था, एतिहाद जो ये बड़ी कंपनीज है ना, ये कभी भी आपकी फोटोग्राफ ऐसी वेबसाइट से नहीं खरीदेंगी। वो वेबसाइट पे देखेंगी, बट दे विल रीच यू डायरेक्टली। जब एतिहाद ने खरीदी तब तो गेटी था भी नहीं, 2013 की बात है। तो एक दुबई की एक बहुत फेमस पीआर एजेंसी है, मैकेन साची नाम है उसका। तो ओके उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था कि, एंड उन्होंने मेरे को बोला था कि आपकी ये वाली फोटोग्राफ हमें खरीदनी है। और उन्होंने मेरी फोटोग्राफ फेसबुक पे देखी थी, मेरे पेज पे। ओके तो ओके वहां से उन्होंने मेरे को देखा, मेल पे मेरे को कांटेक्ट किया, वी वांट टू बाय दिस फोटोग्राफ।
एंड तब तक मुझे पता भी नहीं, मैं लास्ट मोमेंट तक, जब तक मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ गया, जब तक पूरी प्राइसिंग डिस्कस नहीं हो गई, तब तक मुझे पता नहीं था वो फोटोग्राफ कौन खरीद रहा है। तो जब ओके मेरे को कॉन्ट्रैक्ट आया तब मुझे पता चला कि वो एतिहाद एयरवेज खरीद रहा है फोटोग्राफ, बिकॉज उनको लगता है कि अगर वो, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने मेरे को $2000 में, मैंने $2000 में उनको बेची, उसमें उनका भी कट है खुद का, तो $2000 वो भी कमा रहे होंगे। तो अगर डायरेक्टली अगर वो एहतियात बोल देंगे तो मे बी एहतियात कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली, और मे बी आई कैन कांटेक्ट एहतियात डायरेक्टली। या तो वो तो इसलिए लास्ट तक ना एहतियात को पता था किसकी फोटोग्राफ बिक रही है। एहतियात ने उनको सिर्फ एक वो दिया था कि हमें दिल्ली में, तब एहतियात एयरवेज की एयरलाइंस लॉन्च हो रही थी इंडिया में, नहीं नहीं, पहली पहली ओके एयरलाइंस इंडिया में आ रही थी, एहतियात एयरवेज की। तो ओके उनको अपने बैनर्स के लिए दिल्ली की एक फोटोग्राफ चाहिए थी, तो दिल्ली का एसेंस दिखा सके। तो उन्होंने मेरी एक फोटोग्राफ जो मेरी पसंद करी थी, बल्कि उससे बेटर बेटर फोटोग्राफ मैंने उनको दी। मैंने लोटस टेम्पल का उनको शॉट दिया, मैंने इंडिया गेट का शॉट दिया, मैंने एक दो शॉट और दिए थे, बट दे सेड कि नहीं हमें यही शॉट चाहिए। तो मैंने कहा ओके ठीक है, दैट्स कूल। एंड वो बहुत ही कैजुअल सा शॉट था, यू डोंट बिलीव कि वो शॉट मैंने उससे पहले ना कहीं डाला भी नहीं था, इतना ओके घटिया शॉट लगता था मुझे। तो बट उनको वो पसंद आया, तो तब से मुझे रियलाइज हुआ कि क्लाइंट को क्या पसंद आ जाए आपको नहीं पता। तो आई कैन क्लाइंट ना बहुत अंडरस्टैंड। पागल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यू नेवर नो। गुजरात, मेरे साथ भी अभी ऐसा ही हुआ। गुजरात टूरिज्म ने मेरी फोटोज कुछ खरीदे हैं एक्चुअली, और उनको जो फोटो पसंद आई है वो मैंने अपनी स्टोरी पे डाली थी। बेसिकली मैंने पोस्ट के लायक भी नहीं समझा था कि डालूंगा उसको, और मैंने जब उनको वो फोटो भेजी, मुझे लगा कि इफ यू हैव सीन माय ड्रोन फोटो ऑफ, जो मैंने बोट्स की एक ड्रोन फोटो डाली थी गुजरात की, हाँ हाँ, तो यस 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 यस। मुझे लगा कि शायद वो फोटो खरीदेंगे, तो वो उन्हें पसंद नहीं करी। उन्होंने मंदिर की भी पसंद नहीं करी, जो मैंने मंदिर की डाली है, सोमनाथ मंदिर की ड्रोन शॉट लिया है, वो भी नहीं है। हाँ हाँ। उन्होंने नॉर्मल सा एक जो कच्छ का फोटो है, उनको ऊंट वाला वो पसंद आया, उन्होंने वो खरीदा है फोटो उसको। सो या आई कैन टोटली रिलेट कि ये जो वो फोटोज जो क्लाइंट खरीदता है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो खरीदते हैं, उनको जो हाँ उनकी चाहिए वो। रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से, एज आई सेड ना कि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है, तो आपको नहीं पता कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है। राइट राइट। सो गुड दैट। और अभी बहुत लोग पूछ भी रहे हैं, सो आई होप So यू that's पीपल why, गॉट द। yeah, I just want to continue this. Okay, that's why I always say कि there are some people जो ना जब ताज जाते हैं, तो ताज की ना नॉर्मल क्लीशे फोटोग्राफ नहीं करी खींचते हैं वो, लाइक एंट्री से या कॉर्नर से, उनको लगता है बहुत क्लीशे है। बट आपको नहीं पता क्लाइंट को क्या पसंद आ जाए, तो आप खींच के रख सकते हो फॉर सेलिंग पर्पस। यू कैन क्लिक एंड यू कैन पोस्ट ऑन दीज प्लेटफॉर्म, इमेज बाजार या गेटी पे आप डाल सकते हो, बिकॉज आपको नहीं पता क्लाइंट को क्या कलर स्कीम पसंद आए। मे बी आपके ताज के ऊपर क्लाउड्स ऐसे हो जो उसको पसंद आ जाए। तो क्लीशे तो है, लेकिन आपको नहीं पता क्लाइंट को क्या चाहिए। तो समटाइम्स आपको ना क्लीशे शॉट्स भी आपके, आई नो सम फ्रेंड्स जिनका बहुत ही क्लीशे शॉट्स बिके हैं, बहुत ही हाँ क्लीशे हैं यार, जो हर कोई क्लिक करता है, बट उनके राइट। बिके हैं बिकॉज उनके में ना हल्का सा क्लाउड दिख रहा है या हल्की सी लाइट आ रही है। तो आपको नहीं पता क्लाइंट को क्या पसंद आ जाए, तो ऑलवेज ऑलवेज क्लिक एवरीथिंग। एंड सेलिंग में, क्योंकि सेलिंग की बात हो रही है, सेलिंग में वो मूडी टोन्स और डार्क और बहुत ज्यादा वो नहीं चलता। दे वांट मोर ब्राइट इमेजेस until and unless you are making visual art. Visual art is something which is being sold quite a lot, जिसमें आप नया नया लाइटनिंग और ये और थंडरबोल्ट और वो सब डालते हैं कार वार के बारे में। But apart from that, yes, normal images of landscape, good photographs, good lights, good beautiful things, those things मोस्टली are वही बिकती है आपको, यस। right, right. सेलिंग पर्पज So से आपकी वो होती है। perfect. So very good, very good, very insightful knowledge here we got from Nimit. सेलिंग बहुत बार क्वेश्चन होता है लोगों का, और प्लीज कंसंट्रेट आप लोग अपना सेलिंग के ऊपर भी, क्योंकि सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो डालना shouldn't be the only task which you will be doing, which you should be doing. As a photographer, you have to यू हैव spread your टू बी, wings. यू हैव टू बी, आई टेल यू वेरी वेरी सिंपल सीक्रेट ना, जो मेरे को अब तक रियलाइज हुआ है। जितने भी लाइक पीपल आस्क मी कि आप एहतियात, आपको आपको एहतियात ने कांटेक्ट किया, आपको तीन चार और एलजी ने आपकी फोटोग्राफ करी, तो हाउ कैन द ब्रांड्स विल रीच यू, आप कैसे रीच करते हो ब्रांड्स को? तो आई नेवर रीच टू एनी ब्रांड। एंड आप ब्रांड को कितना भी रीच कर लो, ब्रांड खरीदेगा ही नहीं जब तक कि उसका मन नहीं होगा। यूजुअली ब्रांड जब ब्रांड ना आपको सर्च मारता है गूगल के थ्रू, लाइक नेट जियो में जो मेरी नेशनल ज्योग्राफिक ट्रैवलर रोमानिया की जो मैगजीन में जो मेरी फोटोग्राफ फीचर हुई थी, तो उसकी जो एडिटर थी वो ना धर्मशाला के ऊपर एक आर्टिकल लिख रही थी। तो उसको फोटोग्राफ चाहिए थी धर्मशाला की, कुछ 5-6 फोटोग्राफ चाहिए थी धर्मशाला एंड मैक्लोडगंज की।
तो उसने 3-4 फोटोग्राफर्स को अप्रोच किया, तो एवरीवन इज चार्जिंग डिफरेंट डिफरेंट प्राइस. लेट्स सपोज द शी अप्रोचेस टू 3 फोटोग्राफर्स, एवरीवन इज चार्जिंग 10,000, तो शी इज गिविंग 30,000. उसने गूगल पर सर्च किया, उसको मेरी प्रोफाइल पे ही सारी फोटोग्राफ मिल गई. उसने मुझे अप्रोच किया, उसने बोला निमित मैं आई विल गिव यू 20,000 या 15,000, कैन यू गिव 5 फोटोग्राफ्स टू अस. मैंने कहा ओके दैट्स कूल. सो उसको आधे प्राइस में सारी फोटोग्राफ मिल गई. तो usually they search on Google. So always be active on different platforms as well. Instagram searchable नहीं है आपका, Facebook आपका searchable नहीं है Google पे. So you have to be active on different platforms as well. There are so many platforms. Flickr है, 500 pics है. There are so many other platforms as well जहाँ पे आप फोटोग्राफ डाल सकते हो. तो वहां से आपका searchable ज्यादा होता है. Right. Of course. So how many photographs basically you have to upload on these stock images to get more visibility there? क्योंकि ये भी वेरी एक लेस, वेरी लेस. I'm very choosy now. I'm very choosy. जो मुझे लगता है कि बिक सकती है, मैं वही डालता हूँ, या मुझे लगता है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट है, वो मैं डालता हूँ, वरना मैं यूजुअली नहीं अपलोड करता हूँ. आई एम वेरी लेजी यार. आई एम वेरी लेजी. तुम मेरे साथ रहे हो तो तुम्हें पता है मैं बहुत लेजी हूँ. तो मैं right. बहुत लेजी हूँ इन मामलों में. Right. Contradictory to your statement, हमको सभी ने बोला था कि you have to upload bulk. बहुत सारी डालो तब बहुत ज्यादा बिकेंगी बेसिकली. His या intention चांसेस was होते हैं, his चांसेस होते हैं. intention was कि अगर आपको ज्यादा बेचनी है तो ज्यादा अपलोड करो, irrespective of the fact कि आप नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं नहीं, ज्यादा बेचनी है ऐसे नहीं होता. उसने इसलिए बोला है क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल में एक या दो फोटोग्राफ है ना, तो जो बेचने वाली साइट्स है ना, वो भी आपका नाम क्लाइंट्स को रेफर नहीं करेगी, क्योंकि वो एक ही जगह से सारी की सारी फोटोग्राफ निकालने की कोशिश करती है. सो ओके. इफ यू हैव अ 500 फोटोग्राफ फ्रॉम इंडिया ऑन योर प्रोफाइल, तो आपकी प्रोफाइल ज्यादा क्लाइंट तक पहुंचने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादा वेराइटी है. तो गेटी को या आई स्टॉक को ज्यादा जगह पे ना सर्च नहीं मारना पड़ रहा चीजें, एक ही प्रोफाइल पे उनको सब कुछ मिल रहा है. सो दैट्स Right. व्हाई बल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कौन सी बिक जाए आपको पता नहीं है. Right. Okay. So, now since we have passed that 45 minutes bar, I gonna open this forum. मैं comment section के भी कुछ questions अब pick करूंगा. Literally मुझे पता नहीं चलता जब आर्टिस्ट से बात होती है, 1 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं ना, चलता. मुझे भी नहीं पता चला यार, 1 घंटा हो गया, ऐसे तो 45 मिनट हो गए. So yes, I gonna take questions in comment session, चलो, comments now, और हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. श्योर बहुत श्योर भाई. लोगों ने को हाय बोला है. We couldn't reply to those highs. Hi everyone, thank you for joining. हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सो मच. Okay, so how is Tripoto basically? How you are working with Tripoto? How is it doing work with Tripoto? I am also associated with Tripoto, but first of all, how about you answer that? मेरा और आपका थोड़ा शायद अलग होगा. मैंने उनके साथ दो ही काम, मैंने आई थिंक उनके साथ 3 ही बार काम किया है. एक तो मैंने उनकी वर्कशॉप ली थी एक कॉलेज में, दे इनवाइट, मैं उनको ट्रैवल फोटोग्राफी में वर्कशॉप देनी थी, तो दे इनवाइट मी फॉर अ वर्कशॉप. उसके बाद बैंकॉक में हम दोनों ने साथ में काम किया, और उसके अलावा एक आया था मेरे पास, लंदन वाला एक प्रोजेक्ट आया था उनका, बट बिकॉज ऑफ द फ्रेश पासपोर्ट वीजा, मेरा Visa वीजा issues, रिजेक्ट right? हो गया उस वक्त. Mhm. तो मेरा वो पासपोर्ट, तो इससे ज्यादा मैंने काम नहीं किया उनके साथ. तो दे हैव सम बेटर फोटोग्राफर, बेटर ट्रैवल फोटोग्राफर. आई एम नॉट अ आई एम मोस्टली अ ट्रैवल फोटोग्राफर, बट दे लुक फॉर द ट्रैवलर्स मोर. लाइक ट्रैवलर्स जो अपनी फोटोग्राफ ज्यादा दिखा सके, तो उनको ना ट्रैवलर्स ज्यादा चाहिए, फोटोग्राफर्स नहीं चाहिए उनको, क्योंकि Right. उनकी जो साइट है वो ट्रैवल बेस है, नॉट फोटोग्राफी बेस. So that is the Right. main difference. That's why I start posting more of my photograph on my Instagram. Right. So since I have also been working with Tripoto actually for past 6 months अभी हो गया है, क्योंकि वो बैंकॉक ट्रिप के बाद से मेरे को मतलब मिला था. That was a formal communication. I am the exclusive content creator for them now. तो वो मेरा Oh, great, नाम. great. ये तो मेरे को भी नहीं पता था. तो ओके. सो इसी के लिए मेरे को उनके साथ में सिएटल जाने के लिए मिला था. बोइंग का शूट मेरे को उन्हीं की तरफ से आया था, जो अभी मैंने रिसेंटली शूट किया था विस्तारा का बोइंग का. तो वो ट्रिपोटो ने मेरे को भेजा था बिकॉज ऑफ दैट एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए. So yeah, it's good. It's Tripoto is definitely it's a good platform. Keep tagging Tripoto. They keep an eye on the people who create good work. मेरे Tripoto के मैनेजर से बात हुई है, and Tripoto को numbers बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं. They mostly Content, see content, कंटेंट content. उनको बहुत मैटर करता है. तो आप लोग टैग करते रहिए ट्रिपोटो को. तो वी आर नॉट मार्केटिंग फॉर ट्रिपोटो, बट यस, Yeah, गुड प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज रिकमेंडेड. yeah. हाउ टू फेस फियर ऑफ
your photo being stolen on social media? T graphic creations का question. फेयर क्या हुआ? मैं कि स्टार्टिंग में यार बहुत लगता था, हमें भी डर लगता था कि हमने बहुत बड़े बड़े वाटर मार्क्स भी मारे हैं बीच में ना, बहुत बड़े बड़े। बट आप कुछ भी कर लो, यू कांट स्टॉप द पीपल। अगर उनको कुछ फोटोग्राफ अच्छी लगेगी, आपकी फोटोग्राफ चोरी हो रही है तो आपको खुश होना चाहिए कि आपने कुछ ऐसा क्लिक किया है कि पीपल आर स्टीलिंग योर वर्क, विच इज मोर अप्रिशिएटिंग फॉर यू। मेरी आप कुछ कर रहे हो जो लोगों को पसंद आ रहा है। तो एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के जब आपका काम अच्छा हो जाता है, पीपल नो योर वर्क। सो मेरे पास अभी भी काफी लोगों के आते हैं जो कहते हैं कि सर आपकी चोरी कर लिया। अभी तो किसी बंदे ने मेरी टैगलाइन चोरी कर ली है यार। मैं कि आज ही मेरे पास एक किसी का डीएम आया था, किसी की प्रोफाइल का, आई मेंशन ऑन माय प्रोफाइल रिजेक्टेड बाय मैनी एक्सेप्टेड बाय सेल्फ। सो द समवन इज stolen दैट पार्ट एज वेल। उसने अपने डिस्क्रिप्शन पे भी सेम डाल रखा है, एंड दैट गाय इज नॉट फॉलोइंग मी। तो मैंने कहा यार ओके ठीक है, कूल है, ओके कूल। पीपल आर, यू आर डूइंग, इट फील्स गुड until unless they are not selling your work, it's fine. And if I you don't think think so that that work could be sold also because आपका जो high they need a quality high resolution, किसी yeah, को भी सोशल मीडिया वाली वो मोबाइल लेवल का और रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, सबको एक हाई नहीं चाहिए, नहीं रेजोल्यूशन चाहिए। चाहिए। और अगर वो और करते भी हैं तो बेसिकली दे आर डूइंग काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ योर वर्क ओनली। यस ऑब्वियसली, तो बेटर है कि आप उसका नाम अपने उस पर शेयर कर दो तो लोगों को लग जाएगा अरे इसका काम चोरी हो रहा है, कुछ तो कर रहा है, तो दे विल सी योर प्रोफाइल मोर। एंड अगर आपको ज्यादा लगता है कि अगर आपको कोई फोटोग्राफ हटानी है तो इंस्टाग्राम का वायलेशन वाला जो वो है कॉपीराइट ऑप्शन है, वायलेशन। आप उस पर रिपोर्ट, कॉपीराइट वाला आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हो। इट इज रियली गुड, इट इज रियली गुड। मैं कि राइट। आई लिटरली ब्लॉक सम पीपल अकाउंट, बिलीव मी। मैंने 3 लोगों के अकाउंट ब्लॉक करवा दिए हैं बिकॉज दे आर नॉट लिसनिंग and they are keep stealing my work. So I keep reporting them and I ask some people, I posted on my Instagram, and thankfully मेरे को इंस्टा मेरी फैमिली है, they reported so bad in 24 hours कि उनके अकाउंट डिलीट हो गए। उनके मेल अब मेरे पास आ रहे हैं, सर वापस ले लो। मैंने कहा मेरे हाथ में नहीं है, अब हो गया, आपको जब बोला तब आपने सुना नहीं। तो ये भी है कि चोरी करो मत और किसी का काम भी ना, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, तो बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीजों पे। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को दिख रहा है, एक मैं उनको दो को लाइक ज्वाइन करूंगा कि स्ट्रीट फोटोग्राफी और के बारे में टिप्स और एस्ट्रो फोटोग्राफी के बारे में टिप्स, और वीडियो है क्या इसका, और कैन यू डू एस्ट्रो विद एपीएससी यस, सेंसर? मेरी दोनों के ऊपर वीडियो अवेलेबल है। एस्ट्रो के ऊपर तो आई थिंक मेरे पास 3 वीडियोस मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, और स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी आई थिंक एक है, और एक है मेरी कॉम्पोजिशन के ऊपर। तो मेरी सबसे सक्सेसफुल मेरे को जो 2 वीडियोस लगती हैं वो स्ट्रीट फोटोग्राफी और टिप्स ऑन कॉम्पोजिशन वाली है, बिकॉज उस पर सबसे कम थम्स डाउन है, एंड पीपल जस्ट लव दैट फॉर वीडियोस एज वेल। तो आई थिंक वो 2 वीडियोस आप देख सकते हैं अगर आपको, इफ यू लव स्ट्रीट फोटोग्राफी। राइट राइट। निमित, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आई एम मैच्योर फोटोग्राफर की तरफ से, बियर्ड कैसे मेंटेन करते हो? बियर जो है नहीं भाई, मैं खाद वाद सब लगा चुका हूँ, कुछ नहीं आ रहा है यार, क्या करूँ मैं? आई मे वॉन्ट बट भी शायद मेरे लिए वो क्वेश्चन हो। हाँ वो आपके लिए होगा, बिकॉज मेरे पास नहीं है भाई, मेरे तो हाथ में भी नहीं है। ओके। मेरा तो भाई भगवान की देन है, और थोड़ा आलस की वजह से मैं मेंटेन कर पाता हूँ। इतना आलस है कि काटता भाई नहीं हूँ तो उम्र बढ़ती जाती है। ओके। प्रणय प्रणय बहुत प्यार करता है तुमको, मैंने कम से कम 5 बार देख अरे लिया है। सर आई लव ही यू। इज अ वेरी नाइस गाय, ही इज अ वेरी नाइस गाय, वेरी नाइस गाय। मेरे बहुत ही मस्त बंदा है। मैं इससे फर्स्ट टाइम सैबी के थ्रू ही मिला था, एंड इसने मुझे हल्दी फेस्टिवल पहली बार घुमाया था, सब मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो इसने मुझे और सैबी को हल्दी फेस्टिवल घुमाया। पूरे टाइम ही हमारे साथ रहा था। और प्लस जब मैं सेकंड टाइम भी गया पुणे, ये बिजी था बट स्टिल ये मेरे को एयरपोर्ट पे लेने आया। ही इज अ वेरी गुड गाय, एंड इसका काम बहुत अच्छा है, बट ही इज नॉट सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, बट हिज वर्क इज रियली गुड। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। राइट राइट। एक्चुअली इसी इसी पॉइंट पे मैं थोड़ा और आगे बोलूंगा। इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। आई मीन अपार्ट फ्रॉम हैविंग दीज फॉलोअर काउंट एंड ऑल, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे बने हैं मेरे। मैं आज की डेट या में आई दैट, कैन। मैं पीपल पीपल आस्क मी कि आप ना हमें फॉलो क्यों नहीं करते हो? मैं बोलता हूँ कि मैं ना यूजुअली उन लोगों को फॉलो करता हूँ जिनसे मैं मिलता हूँ, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट द सोशल मीडिया पीपल दीस डेज। मैंने बहुत ही बैड फेसेस देखे हैं अपनी लाइफ में ना। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने अपना इंस्टाग्राम जब स्टार्ट किया था, जब उनके पास 100 फॉलोअर्स थे,
दे आस्क मी कि निमित शेयर करो हमारी ना फोटो वॉक, निमित हमारा ये शेयर करो, मैंने अपने उस पे शेयर किया, अपने उस पे टू गिव देम अ रीच. नाउ दे राइट. हैव अ मोर फॉलोअर्स देन मी, एंड व्हेन आई आस्क देम कि सर ये शेयर कर दो, तो दे नेवर शेयर. तो ओके. मैंने ना बिलीव करना ही छोड़ दिया है. तो जब तक आप मिलोगे नहीं तब तक, मैंने आपको भी आई थिंक मिलने के बाद भी मैंने फॉलो नहीं किया था. आई थिंक आपने मेरे को बोला था मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ. आई स्टिल रिमेम्बर. सी निमित, आई अंडरस्टैंड यू. मैं इनफैक्ट सबको, जितने भी लोग मेरे को मिलते हैं, मैं बहुत बाद में हूँ इंस्टाग्राम पे, और मैं सब जितने भी लोग मेरे को फॉलो करते हैं या मैं जिनको फॉलो करता हूँ, मैं कभी, और मैं मिलता हूँ पर्सनली. मैं गणेश को पहली बार मुंबई में मिला था, मैं साबी को जो है होली में मिला था. इन सब लोग को कभी मैंने किसी को भी इंसिस्ट नहीं किया कि आप फॉलो करो. मैंने जायद को नहीं किया, आपको नहीं किया. ऑब्वियसली आप किसी से मिल रहे हो ना, तो आपका नाम पता चल जाए, और अगर आपका काम हाँ. इतना अच्छा है, दे विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू. राइट. सो बेसिकली इट्स अप टू यू कि आप कितना वर्क अपना दिखा रहे हो. अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपके वर्क से इंस्पायर है, या उनके रिलेशन इतने अच्छे हैं आपसे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको फॉलो करेंगे. और नहीं कर रहे हैं तो ओके. यू कीप ऑन डूइंग योर वर्क. अपना काम करते रहो. मैं भी करता रहता हूँ. आज भी मेरे को जब बड़े बड़े लोग आके फॉलो करते हैं तो आई फील ग्रेटफुल कि उन्होंने किया. लेकिन मैंने कभी किसी को पर्सनली इंसिस्ट नहीं किया. मैंने निमित, निमित हमारी चैटिंग कितने बार हुई है. हाँ, हमेशा हम लोग चैट मुझे करते अभी याद थे. है, इसने मुझे, मैं कि तुमने मुझे बहुत बेइज्जत किया था, तुमने कहा था मैं अभी भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ तुम्हें. मैंने कहा नहीं यार मैं कर रहा हूँ. तूने कहा नहीं कर रहा No, that was हूँ. not that was नहीं नहीं, basically एक्चुअली मैंने, came out नहीं नहीं, of एक्चुअली मैंने आपको, हाँ नहीं नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि आई एम फॉलोइंग यू, तो यू सेड कि नहीं नहीं यू आर नॉट फॉलोइंग यू. मैंने कहा नहीं नहीं आई एम फॉलोइंग यू. कह रहा of नहीं. course, you always remember people like Nimit Nigam if they follow you or not, right? Right. So okay, taking to the next question. दो question again मैं merge करता हूँ कि how do you approach the magazine company and what is the criteria for pricing of photograph? Like who decide the photograph? Approaching to magazines, yeah, there are so many. When you see a magazine, there is a editor website का mention होता है उधर, editor हमेशा. तो वो Right. editor email इसलिए mention होता है because you can, so that you can send your work to them. और यूजुअली अगर उनके कई बार, लाइक मेरा सबसे पहला काम बेटर फोटोग्राफी में फीचर हुआ था, फिर एशियन फोटोग्राफी में फीचर हुआ था. उनके ना अलग अलग से कॉलम होते हैं. आई थिंक वो व्यूअर्स वर्क करके कुछ कहते हैं, जिसमें वो जो लोगों ने सबमिट करी है फोटोग्राफ, उसमें से 6 फोटोग्राफ वो सेलेक्ट करके फीचर करते हैं. तो मैंने उसमें भेजता था अपना काम को. स्मार्ट फोटोग्राफी ने तो मेरा काम 6 बार रिजेक्ट किया था. they Okay. haven't featured me na on their magazine. I stopped sending my work to them, and after an year they approached me and they said कि we want to feature your interview on our magazine. So रिजेक्शंस ऐसे हैं कि रिजेक्शन से आपको ना डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए. कई बार क्या होता है कि कई बार वो इतने बिजी होते हैं कि वो आपका काम नहीं देख, क्योंकि उनके पास ना इतने सारे फोटोग्राफर्स का काम आ रहा है, वो हर किसी का काम नहीं देख सकते हैं, तो कई बार स्किप हो जाता है. कई बार होता है कि उनको मे बी आपका काम पसंद नहीं आता, हिट नहीं करता है, तो वो आपका Right. फीचर नहीं कर रहे हैं. बट कीप डूइंग योर गुड वर्क एंड दे विल ऑटोमेटिकली, बिकॉज दे ऑल्सो नीड यू. अगर आपका काम फीचर नहीं करेंगे वो, तो वो उनकी मैगजीन कैसे चलेंगी. सो इफ योर Right. वर्क इज गुड, दे विल ऑटोमेटिकली रीच यू. एंड प्राइसिंग का ये है कि या मैगजीन्स में फीचर होने के ना बहुत ही रेयर केसेस में आपको पे मिलता है, बिकॉज मैगजीन्स के नाम को आप, देर आर सम थिंग्स जब आप उन नाम को ना आप कैश कर सकते हो. लाइक माई वर्क गॉट फीचर इन नेशनल ज्योग्राफिक ट्रैवलर मैगजीन. दे पेड मी, बट अगर वो पे भी नहीं करते मैं तब भी कर देता, बिकॉज आई नो आई कैन कैश दैट नेम. मैं आई कैन Right. से टू अदर पीपल मेरा काम नेशनल ज्योग्राफिक में फीचर हुआ है, सो मैं उसको कैश कर सकता हूँ. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे कैश करो. जरूरी नहीं, बहुत ही 99% मैगजीन्स मैंने देखी है जो आपको पे नहीं करेगी, बिल्कुल पे नहीं करेगी, बिल्कुल भी, until unless they are not giving you assignments. So निमित, 1 घंटा हो गया, पता भी नहीं चला. Last 1 minute we have left with. Since Instagram abruptly stopped these sessions, 1 घंटे में क्या सब बात कर बहुत रहा है, सारी. 1 घंटे में हाँ, कर देता है. 1 घंटे ये में नहीं अपने पता था आप यार. खत्म हो जाता है. 30 सेकेंड्स का एक आपको वो दिखता है बस नोटिफिकेशन, और वो खत्म हो जाता ज्यादा है. बड़ी हार्ड डिस्क नहीं है इनके पास. राइट, राइट. सो थैंक अरे यू सो थैंक यू मच. सो मच ब्रदर, यू आर ऑल्सो बहुत. इंस्पायरिंग. सैबी जी. सभी ने बहुत सारे कमेंट किए हैं बीच में. सभी मैंने आपके कमेंट पढ़े हैं और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अभी, लेकिन क्योंकि वी डू नॉट हैव दैट टाइम. बट थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू फॉर सो मच ज्वाइनिंग. हरामखोर. राइट. नहीं थैंक तू यू. बोलता रहे, तू बोलते रहे. Thank you so much everybody for joining in. It was awesome. 30 सेकंड बचे हुए हैं. Let's take that picture थैंक यू for सो the मच. live. Okay, right. So we got this picture. Thank you everybody once again. This थैंक यू was सो मच, थैंक यू fantastic सो मच. session. बहुत सारी चीजें सीखने मिली है.
And Nimit, stay in touch. You are doing great. We Oh, will sure, be buddy. we'll connect soon on this. Thank you so much, Thank you guys. so much, brother. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Or all the best for your lives, further lives. You are doing this session.